Good afternoon to everyone. Good afternoon, ma'am. Uh, so I guess in last lecture we have started with design of one-way slab, and I think almost we have completed. What was the remaining part in design of one-way slab? Hmm? Which part left? So this was the last lecture, right? Step number 7. We have done with area for main reinforcement and area for distribution steel. Are you remembering? याद आ रहा है कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this was our last thing. Now coming to step number 8. Now once you have made reinforcement and your distribution steel, the next is to find or to check for deflection, because you require to know your slab for the deflection criteria. Now this deflection criteria is same as you did for the beam. So very first we require to know basic span by D, and we require to know actual span by D. And your basic span by D should more than actual span by D. Now here, as we have now reinforcement, your basic span by D should multiply with modification factor. Right. Now what is basic span by D? What is L? Effective length 3.675. So here 3675 in mm, divide by small d. What is small d in our case? 175 into modification factor. Now this modification factor you can get from IS 456 figure number 4. So I am opening figure number 4. Sorry, over here this 3.6775 and 175, it should be over here 3675 divided by 175. This is your actual span by D, right? And what about basic span by D is 20 for simply support into modification factor. This you can get from figure number 4 IS 456. So figure number 4. So this is figure number 4. Over here. So our AST PT value is 0.248. 0.248.
Yes, ma'am. Okay, 0.248 एंड FY is 240, so यहाँ पे हमें देखना है 0.248, so 0.25, so it will be over here. यहाँ से आप स्केल, अगर हार्ड कॉपी है तो स्केल ले लो, and here I think it is not matching, right? मैम सेकंड लाइन में नहीं आएगा 0.248? हाँ 0.248, हाँ तो यहाँ पे, so it will be around over here 1.7. 1.7, so here 1.7, चलो 20 into 1.7, 34. and 3675 divided by 175, 21. 21. 21, right? So here 34 and this is 21, so check for deflection is okay. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. Okay. Now, though it is not required to, check for the shear condition, सिर्फ I'm going to show you, as this slab is same like a beam, जैसे बीम में हम shear डिज़ाइन करते हैं वैसे स्लैब में भी shear डिज़ाइन हमें करनी पड़ती है, राइट? बट ऑलवेज चेक फॉर shear इन स्लैब विल बी सेम, क्योंकि स्लैब का थिकनेस बहुत कम होता है कंपेयर टू बीम, तो that's why the beam is requiring stirrups for the shear resistance, whereas in slab there is no requirement of resisting shear by external reinforcement like stirrups. Only the concrete can take the shear generated in the slab. तो स्लैब में जो भी shear generate होता है वो कंक्रीट ले लेता है, राइट? दैट्स वाई स्लैब में अगर आप देखोगे तो कभी भी स्टीरअप बार नहीं होता है कंपेयर टू बीम, राइट? बट अगर आपको चेक फॉर shear करना है स्लैब में भी, so that is same that you did for the beam, that for check for shear you require to know tau v less than tau c है या greater than है, राइट? tau v कैसे मिलेगा? नॉमिनल shear stress tau v is equal to vu अपॉन bd, ठीक है? सिंपली सपोर्ट स्लैब है तो उसका shear क्या होगा? WL/2 अपॉन b इंटू डी। W क्या है हमारा? आगे की कैलकुलेशन में हमने लिया होगा कहीं पे, W क्या है? 15.562. 15.562, तो 15.562, लेंथ क्या है? 3.675 Yes, ma'am. डिवाइड बाई 2, और B क्या है? B कितना लेना है हमें स्लैब के लिए? 1 मीटर स्क्वायर, तो 1000, और स्मॉल d 175। चलो टाउ भी फाइंड करो। टाउ भी
चलो 0.163 0.163 यूनिट यहाँ पे 10⁻³ डालना है। 0.163 unit is Newton per mm square. Right, now tau c. How to get tau c? tau c कहाँ से मिलेगा आपको? टेबल नंबर 19. So from table number 19, yes, you will get tau c. Right, our percentage pt is कितना था? 0.24 समथिंग है ना? 0.248 0.248. तो देखो 0.25 यहाँ पे है, m20 लेना है, तो टाउ सी की वैल्यू क्या है? मोर और लेस 0.36. सो टाउ सी इज 0.36 न्यूटन पर mm square. So here tau v is far less than tau c. So check for shear is okay. Right? That means no requirement of shear reinforcement. Is it clear everyone? yes ma'am. राइट अगर आप ये चेक नहीं करोगे तो चलेगा, बिकॉज सी दिस डी वैल्यू फॉर स्लैब इज वेरी लेस कंपेयर टू बी. तो जो भी शियर है वो कंक्रीट ले लेगा, एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. राइट, सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस वन वे स्लैब डिज़ाइन. आगे मैंने करवाया था ये पूरा, एंड right now we have check our slab for the safety condition also, for the serviceability criteria also. Now coming to the detailing part, drawing part. Like last is drawing or detailing. ठीक है, तो डिटेलिंग कैसे करना है आपको, आई एम शोइंग दिस ओनली. ऐसे ये प्लान फिगर है, ठीक है. तो यहाँ पे ये प्लान है पूरा आपका. तो ये 3.5 मीटर, ये लेंथ हमें नहीं पता है, तो ऐसे आपको प्लान में ड्रॉ कर देना है. ठीक है, मेन रेनफोर्समेंट कहाँ है? ये पैरेलल टू शॉर्टर स्पान. तो देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट बेंटअप बार रखा है. प्लान में तो बेंटअप नहीं दिखेगा, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम शोइंग. यहाँ पे देखो ये बेंटअप बार एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. राइट, दिस इज द मेन रेनफोर्समेंट बार. और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैसा होता है? वन वे में स्ट्रेट बार. तो ये देखो यहाँ पे स्ट्रेट बार है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है. और कैसे दिखाते हैं स्लैब में? ऐसे लिखना होता है. स्लैब की थिकनेस इस तरीके से ड्राइंग में लिखते हैं. 160 थिकनेस, 160 mm. हमारा 175 है. टोटल कैपिटल डी लिखना है, जो भी कैपिटल डी वो लिखना है. और ये है जो भी डायामीटर और स्पेसिंग है वो हमने यहाँ पे फाइंड किया है. देखो एवरी टाइम वी हैव रिटन स्पेसिंग 300 mm. ठीक है, कौन सा डायमीटर लिया था हमने? डायमीटर बार कौन सा लिया था हमने मेन रेनफोर्समेंट का? 10 mm diameter, 180 सेंटर टू सेंटर. हाँ, वो लिखा था ना हमने स्टेटमेंट पूरा.
यस मैम। यस। बस तो वो वैसे स्टेटमेंट आपको लिख देना है। और अगर आपको सेक्शन व्यू दिखाना है यहाँ से, ये सेक्शन ए एंड बाय दिस सेक्शन बी, तो आपको इस तरीके से लिखेगा। देखो ये है आपका बॉटम कलर, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। पहले ये प्लान में आपको इस तरीके से दिखेगा, दिस इज आवर प्लान। ठीक है, जो भी लेंथ है वो यहाँ पे आएगी, LX शॉर्टर स्पान में लेंथ होगी। मेन रेनफोर्समेंट आपका कौन सा होगा, पैरेलल टू LX डायरेक्शन। ठीक है, प्लान में वैसे तो आपको बेंटअप नहीं दिखेगा, इसलिए मैं अभी भी नहीं दिखा रही हूँ मेरे प्लान में। तो ये जो है रेड कलर की, ये आपके मेन है। वो हमने कितने लिए थे, 10 mm डायमीटर, और स्पेसिंग बोलो 10 mm diameter, 180 mm 180। center to 180 सेंटर टू सेंटर। तो 180 डिस्टेंस, 180 के डिस्टेंस पे पूरा आपका मेन रेनफोर्समेंट आएगा थ्रू आउट दिस लेंथ। ये लेंथ कितनी है हमें नहीं पता है, पर जितनी भी लेंथ होगी 180 डिस्टेंस पे पूरे रेनफोर्समेंट डालते जाओ। और ये होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टीम पैरेलल टू लॉन्ग स्पान। ये कितना लिया था हमने, 8 mm dia और 210 mm center to center। 210। चलो थिकनेस कितना है हमारा, ओवरऑल थिकनेस 195 mm। 195 mm। ठीक है, तो ये है हमारा स्लैब डिज़ाइन, मतलब इतना होता है। हमें थिकनेस चाहिए, हमें रेनफोर्समेंट चाहिए, तो वी हैव दिस थिकनेस एंड रेनफोर्समेंट। राइट, अगर हमें इसका सेक्शन व्यू चाहिए, अगर ये सेक्शन ए, तो हमें क्या दिखेगा, देखो यहाँ पर ये है आपका सिंपल सपोर्ट स्लैब। यहाँ पे एक सपोर्ट होगा, सपोर्ट यहाँ पे होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, रेनफोर्समेंट मेंबर में एक्सटेंड होके दूसरे मेंबर में जाता है। राइट, तो आपको सेक्शन व्यू कैसे दिखेगा, पहले आपका आएगा मेन रेनफोर्समेंट। तो पहले आपको मेन रेनफोर्समेंट ड्रॉ करना है, और ऑल्टरनेट बेंटअप बार होता है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, ऑल्टरनेट बेंटअप। अल्टरनेट बेंटअप का क्या होगा, एक लेयर आपको ये साइड पे बेंट होगा, जब सेकंड लेयर रखोगे तो ये साइड पे बेंट होगा, उसको बोलते हैं अल्टरनेट बेंटअप। दूसरा अरेंजमेंट भी होता है कि दोनों साइड पे आप बेंटअप रखो एक ही बार को, और दूसरा जो बार है वो स्ट्रेट होगा, तो इससे ये पूरा बेंट बार होगा और ये स्ट्रेट बार होगा। इज इट क्लियर? यस मैम। तो दिस आर दी टू अरेंजमेंट। ठीक है, तो जब लेकिन एलिवेशन में देखोगे तो हमें ये बेंटअप ऑल्टरनेट भी होगा, फिर भी हमें दोनों साइड पे दिखेगा, राइट साइड का राइट साइड पे, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड पे। राइट, और ये बार यहाँ पे एक्सटेंड होगा। मैंने वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखाया था, तो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो वंस अगेन। ये होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टीम जो डॉटेड दिखेगा। आपको ये रेड लाइन के ऊपर एग्जैक्ट दिखाना है। आई एम नॉट एबल टू डू परफेक्टली ओवर हियर, बट आप कर सकते हो। मैं माउस से यूज़ कर रही हूँ, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू प्रिसाइजली। फिर आपको वीडियो में दिखा होगा कि यहाँ पर भी बार्स होते हैं, मिनिमम 2 नंबर्स होते हैं। यहाँ पे भी कोई 2 नंबर्स ऑफ बार्स यहाँ पे। ठीक है,
ये यहाँ पे आपको दिखाना है, दिस इज 10 mm डायमीटर 1 मीटर, दिस इज 8 mm डायमीटर 210। फिर यहाँ पे आपको ये ओवरऑल थिकनेस दिखानी है कैपिटल डी। ये है आपका लेंथ, ठीक है। और जब भी आप ये डायरेक्शन में दिखाते हो सेक्शन एल वाई का, मतलब ये वाई वाई डायरेक्शन में, ये है आपका सेक्शन एक्स एक्स, ये है आपका सेक्शन वाई वाई। तो आपको क्या दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ आपको मेन बार आपको यहाँ से ये सेक्शन में से डॉटेड दिखेगा नीचे की साइड पे। फर्स्ट लेयर शुड बी मेन रेनफोर्समेंट, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इज इट क्लियर एवरीवन? जस्ट मेक इट परफेक्टली ना, डिटेलिंग यस मैम। ठीक से ड्रॉ करना, स्केल पेंसिल लेके। So this is about detailing of your one-way slab. Either you can draw plan figure or this section view. दोनों में से कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। But here you need to mention alternate bent up bar है क्या है, वो यहाँ पे आपको mention करना है। Clear? Yes. यस मैम। Yes, ma'am. Any doubt, any confusion? नो मैम। Okay. So this is about one-way slab design, and this detailing is available in SP34. डाउनलोड कर लेना ये कोड, हैंडबुक है ड्राइंग की। SP34 में ये पूरा फिगर दिया हुआ है, राइट। सो फ्रॉम दैट यू कैन गेट दिस डिटेलिंग। तो उसमें से देख के आपको पूरा डिटेलिंग ड्रॉ करना है। एंड वन मोर थिंग कि ये जो बेंटअप है, ये बेंटअप स्टार्ट होके कहाँ तक एक्सटेंड होगा, तो ये जो है इतना डिस्टेंस वो होता है 0.1 LX, 0.1 LX, ठीक है। यहाँ से ये बेंटअप यहाँ तक जो साइड कवर तक होगा, ये डिस्टेंस होगा 0.1 LX, शॉर्टेस्ट 0.1 ऑफ शॉर्टेस्ट। तो आपको मिल जाएगा कि आपको बार कितना एक्सटेंड करना है, राइट। सो यू कैन सी ओवर हियर 360, ठीक है। दिस 0.1 LX। चलो, so this is all about the one-way slab. Now coming to two-way slab design. I have mentioned about this two-way slab. Two-way slab very clearly, with difference between one-way slab and two-way slab. Can anyone tell me what is one-way slab and what is two-way slab? What is लॉन्गेस्ट one? स्पान टू शॉर्टेस्ट स्पान। Yes. So कितना होता है डिस्टेंस? इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 More than 2. और ग्रेटर देन 2। So if Ly by Lx ratio
is less than greater than or equal to 2, then slab is considered to be the two-way slab, right? The meaning of this is that the slab is distributing the load, slab load, onto all supporting beams or walls. जो भी सपोर्ट है वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. सपोज दिस इज B1, this is B2, this one is B3, this one is B4, right? Then let me yes, this way. So both the way the deflection is taking place in both direction. In one way slab only shorter span deflection is there. ऐसा shorter span में deflection होता है one way slab में, but in two way slab shorter and longer span both will have the deflection. That means the movement will be in shorter span also and in longer span also. The meaning is the main reinforcement are provided in shorter span as well as in longer span. Is it clear everyone? Yes. So over here, मैम लेस देन 2 नहीं आया. हाँ, less than or equal to 2. Right. So here deflection is taking place over here also. And in this direction also. Both the side deflection will be there. So both the side movement will be there. So meaning is the reinforcement, main reinforcement are provided along x direction also. Main reinforcement are provided along y direction also. That means the bent up bar to be provided in x and y both. तो अगर कभी आप साइड पे जाते हो तो आपको बेंट अप दोनों साइड पे दिखता है, that is clearly the example of two-way slab. वो two-way slab होता है. Is it clear? Difference? Yes, Now coming to this. अभी ये है आपका two-way slab. मैंने क्या बताया, एल वाई बाई एल एक्स इक्वल टू 2 और लेस देन 2. सपोज ये है मेरा वन प्लान ऑफ द बिल्डिंग और इसका ये है मेरा स्पान x एंड y. ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है, दैट्स वाई दिस इज एल वाई बाई एल एक्स. सेम है मतलब एल वाई बाई एल एक्स इक्वल टू 2 हो गया. से फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर मेरा है स्लैब. अभी यहाँ पर भी बीम है B1, दिस इज B2, B3, B4. तो ये स्लैब का लोड सपोर्टिंग बीम्स में कैसे ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज ट्रांसफर लाइक दिस. राइट, ये पूरा मेरा स्लैब का लोड ये है. ये पूरा मेरा स्लैब है. ठीक है, अभी वो 4 बीम से कनेक्टेड है तो स्लैब का लोड बीम पे ट्रांसफर होता है.
तो अगर ऐसा मेरा स्क्वायर स्लैब है तो उसका लोड ट्राइंगल शेप में B1, B2, B3 और B4 में ट्रांसफ़र होगा। और उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, तो लोड्स ये लिख देना, मल्टी स्टोरी में काम में आएगा। ऑन बीम्स इक्वली ट्रांसफ़र होगा, B1, B2, B3 and B4 is equal to W LX by 3। ठीक है, तो B1 में कितना फोर्स आएगा स्लैब का, WLX by 3, B2 में भी WLX by 3, B3 में भी WLX by 3 और B4 में भी WLX by 3। मतलब इस तरीके से लोड ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होता है, लेकिन WLX by 3। इस तरीके से ये स्लैब है, उसका लोड ये B3 पे जाएगा। ये है साइन कन्वेंशन। B4 में ऐसे स्लैब का लोड। इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। तो ये चारों कनेक्टेड बीम्स में ये लोड ट्रांसफर होता है यहाँ पर भी। कब, जब आपका जो स्लैब है वो स्क्वायर है, LX and LY both are same, राइट। अभी अगर कोई रेक्टेंगल शेप स्लैब है, सपोज ऐसा, और ये भी टू वे स्लैब बनता है बाय कैलकुलेशन, ये भी टू वे स्लैब होता है। सपोज ये है मेरा, लॉन्गेस्ट स्पान को हम LY बोलेंगे, शॉर्टेस्ट स्पान को हम LX बोलेंगे, ठीक है। एंड दिस इज माय कनेक्टेड बीम्स। तो ये मेरा B1 बीम है, ये है मेरा B2, ये है मेरा B3। टू वे स्लैब में कनेक्टेड जितने भी बीम है सबके ऊपर लोड ट्रांसफर होता है स्लैब। अभी इसको मुझे ट्रांसफ़र करना है, स्लैब का लोड मैं बीम के ऊपर कैसे ट्रांसफ़र करूँ। तो जो लॉन्गर बीम है वहाँ पे ट्रेपेजोइडल लोड ट्रांसफ़र होगा, जो लॉन्गर है वहाँ पे ट्रेपेजोइडल ट्रांसफ़र होगा, और जो शॉर्टर है वहाँ पे ट्रायंगल ट्रांसफ़र होगा। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पर ट्रेपेजोइडल का जो लोड है वो B3 और B4 पे जाएगा स्लैब का। पहले स्लैब लोड तो हमें फाइंड करना ही है, उसके बाद जब बीम की डिज़ाइन करनी है तो बीम की डिज़ाइन के टाइम पे यू रिक्वायर टू ट्रांसफ़र द स्लैब लोड ऑन टू बीम। तो ये ऐसे स्लैब का लोड बीम के ऊपर जाता है, यहाँ पर भी ये ऐसे। ठीक है, फिर ये B2 पे ऐसे जाएगा ट्राइंगल लोड, ट्राइंगल लोड जाएगा। यहाँ B1 पे भी ट्राइंगल लोड जाएगा। ठीक है, तो अभी
copy. Where is my page? अभी वो ट्रांसफर कैसे, मतलब डायमेंशन कैसे चूज होगा? चलो कहाँ गया पता नहीं, ऐसा था, राइट। सो सपोज दिस इज B1, B2, B3, B4। तो यहाँ पे जाएगा ट्राइंगल, यहाँ पे ट्रेपेजोइडल। तो लोड ऑन B1 एंड B2 ट्राइंगल का लोड इज इक्वल टू WLX by 3, right? And load on B3 and B4 is equal to trapezoidal। तो उसका इक्वेशन है WLX by 2 into 1 minus 1 upon 3 beta square, where beta is equal to Ly by Lx। Just let me know whether I have written correctly or not. We'll check. This is the only equation. We'll verify. But the triangle load is WLX by 3 on B1 and B2, और ट्रेपेजोइडल लोड के लिए आपको ये इक्वेशन अप्लाई करना है। तो आप बीम के ऊपर स्लैब का लोड आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। Here W is nothing but the weight of सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। स्लैब का वेट में क्या आता है? स्लैब का डेड वेट, स्लैब के ऊपर जो लाइव लोड होगा वो, जो फ्लोर फिनिश होगा वो, टाइलिंग लोड होगा वो, वाटर प्रूफिंग होगा वो, ये सब कुछ ऐड करके आपको W की वैल्यू मिलती है। एंड LX इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट स्पैन। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. So this way, this is the distribution of two-way slab onto supporting beam. This we required at the time of multi-story building design, but अभी मैंने इसलिए आपको बता दिया, so at that time मुझे फिर से नहीं करना पड़ेगा। चलो, now coming to our direct design part for the two-way slab. The two-way slab design is same we did for the one-way slab. The change is that the main reinforcement are to be provided in both direction, and the moment equation will change. कैसे change होता है? I will show you. First write down this data. Design a reinforced concrete slab 6.3 by 4.5, simply supported on all four sides. It carries a live load of 10 kN per meter square and floor finish of 1.5 kN per meter square. Adobe M25 and FE415 steel. Is it completed? No, ma'am.
So here it is not mentioned whether slab is one-way slab or two-way slab. So very first thing you require to know that Ly by Lx ratio. You need to check whether the Ly by Lx ratio is less than 2 or greater than 2. Depend on that you can do the design respectively. चलो हो गया? Yes, ma'am. Now for the two-way slab design, again you require to open IS 456 and IS 456 में कहाँ पे जाना है आपको? Annexure D. This Annexure D is specifically for slab spanning in two direction. Slab spanning in two direction means slab जो two ways और two direction में लोड को ट्रांसफर करता है, इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो. So it's a slab spanning in two directions. Now there are two type of two-way slab. One is known as restrained slab and other is known as simply supported slab. Now what is difference between restrained slab and simply supported slab? See, whenever you have two-way slab, जब भी आपको two-way slab होता है, now this two-way slab is deflect in this direction, simultaneously in this direction. So you can observe the saucer type of deflection for the two-way slab, just like over here. मैंने आपको पहले बताया था, like this, right? Both the ways. So now when both the direction deflection is taking place, the corners of the slab, ये जो चार corner है, if you can see, sometimes these corners are facing some twisting or movement at this region, right? तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है. आप थोड़ा मतलब सिंपल आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. दैट इफ़ यू हैव बुक, आपके पास कोई स्क्वायर बुक है और ऊपर से आप लोड डालते हो, तो जो चार कॉर्नर्स होते हैं बुक के, वो थोड़ा लिफ्ट होते हैं, थोड़ा मूवमेंट होता है उसमें. तो दैट इज़ कॉल्ड द फोर साइड कॉर्नर्स लिफ्ट, राइट? सो अगर लिफ्ट होता है उसका मतलब जनरली, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है? दैट द स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस एट द कॉर्नर्स. तो इफ़ यू हैव मेक अ प्रोविजन so that ये लिफ्ट ना हो कॉर्नर्स, then that slab is known as restraint slab. मतलब आपने जो भी स्लैब है, जो भी लिफ्ट हो रहा है, उसको रिस्ट्रेन कर रहे हो एट फोर कॉर्नर्स, तो उसे बोलते हैं रिस्ट्रेन स्लैब. अगर आप कुछ भी प्रोविजन नहीं करते हो एडिशनली, सो दैट योर फोर कॉर्नर्स विल नॉट लिफ्टेड अप, उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्ट स्लैब, सिंपली सपोर्टेड स्लैब. This is the type of design for two-way slab, restrained slab or simply supported. Is it clear? Yes, ma'am. तो मतलब रिस्ट्रेंट स्लैब में क्या बोला मैंने कि चार कॉर्नर पे आपको एडिशनल कुछ प्रोविजन डालते हो, मतलब एडिशनल रेनफोर्समेंट डालते हो ये चार कॉर्नर पे, तो उसको बोलते हैं रिस्ट्रेंट स्लैब. अगर नहीं डालते हो तो उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्ट स्लैब. तो ये है डिफरेंस. तो यहाँ पे ये रिस्ट्रेंट स्लैब के लिए भी डिज़ाइन दिया है और सिंपली सपोर्ट के लिए भी डिज़ाइन दिया है. फर्स्ट वी विल सी सिंपली सपोर्ट स्लैब, देन आई विल डिस्कस कि रिस्ट्रेंट में क्या होता है और कैसे होता है. जस्ट आई विल शो यू वन डिटेलिंग फिगर, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि टू वे स्लैब मतलब रिस्ट्रेंट में क्या होता है. यहाँ पे देखो, रिस्ट्रेंट में ऐसे कॉर्नर्स पे रेनफोर्समेंट आते हैं. दिस इज कॉल्ड द रिस्ट्रेंट स्लैब. ये देखो, ये है रिस्ट्रेंट स्लैब. चार कॉर्नर में देखो ये मैशिंग वाले रेनफोर्समेंट एडिशनली प्रोवाइड की गई. सो दिस इज कॉल्ड द रिस्ट्रेंट स्लैब. अगर ये चार कॉर्नर पे एडिशनल रेनफोर्समेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्ट स्लैब. क्लियर?
यस मैम। तो अभी हम रिस्ट्रेन की नहीं, सिंपली सपोर्ट की डिजाइन करते हैं। तो अभी क्या है सिंपली सपोर्ट की डिजाइन में, देखो यहाँ पे लिखा है when simply supported slab do not have adequate provision to resist torsion at corner and to prevent the corner from lifting, the maximum moment per unit width are given by following equation। तो यहाँ पे मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसका इक्वेशन डायरेक्ट दे दिया है इन x डायरेक्शन एंड इन y डायरेक्शन। सिंपली सपोर्ट वन वे स्लैब में मोमेंट कैसे मिलता था हमें, WL²/8। वन वे स्लैब में WL²/8 से मोमेंट मिलता था। टू वे स्लैब में बाय दिस इक्वेशन यू कैन गेट द मोमेंट वैल्यू, राइट। ये इक्वेशन मोमेंट का इक्वेशन बना भी देखो कैसे है, मोमेंट इज इक्वल टू, अगर ये सिंपली सपोर्ट का इक्वेशन है WL²/8, इसको मैं ऐसे लिखूँ 1/8 into WL²। Can I write this way 1/8 WL², ये इक्वेशन को। यस मैम। यस। तो ये जो 1/8 है ना, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, ये है कोएफिशिएंट। तो वन वे स्लैब में 1/8 कोएफिशिएंट है, टू वे स्लैब में भी देखो अल्फा x अल्फा y कोएफिशिएंट इंटू WL²। दिख रहा है, तो इक्वेशन तो सेम ही है मोमेंट का, बट कोएफिशिएंट की वैल्यू चेंज होगी टू वे स्लैब में। इज इट क्लियर एवरीवन? वन वे स्लैब में यस भी मैम। यहाँ पे हम शॉर्टर स्पान लेते थे LX², यहाँ पर भी देखो शॉर्टर स्पान ही है LX²। तो इक्वेशन पैटर्न सेम है WL²/8, तो ये भी है WL², बट कोएफिशिएंट की वैल्यू आपको अलग अलग लेनी है। कैसे लेनी है, आई विल शो यू। where mx my w are same as those in D1.1 and alpha x and alpha y are moment coefficient given in table number 27। तो देखो टेबल नंबर 27 में आपको अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू मिलेगी। क्या लिखा है, बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट फॉर स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल सिंपली सपोर्टेड ऑन फोर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Ly/Lx का रेशियो दिया है 1, 1.1, 1.2 अप टू 3 और यहाँ पे अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू दी है। तो डिपेंड ऑन योर Ly/Lx रेशियो आपको यहाँ से अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई मिल जाएगा। आपको अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई मिल जाएगा मतलब मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन, मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन मिल जाएगा। अगर आपको मोमेंट मिल गया तो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन वाई डायरेक्शन भी मिल जाएगा। आपको डिज़ाइन में क्या चाहिए, यही तो चाहिए। डिज़ाइन में क्या चाहिए, थिकनेस डिफाइन करना है और रेनफोर्समेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर तो मेन रेनफोर्समेंट एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में आएगा। तो आपको एक्स भी मिल गया, आपको वाई भी मिल गया, सिंपल। ये डिज़ाइन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, राइट। वन मोर थिंग इज कि जब भी आप टू वे स्लैब की डिज़ाइन करते हो तो आपका जो टू वे स्लैब है वो दो स्ट्रिप में डिवाइड होता है। वन इज नोन एज मिडल स्ट्रिप, अदर इज नोन एज एज स्ट्रिप। मतलब आपका जो भी स्लैब है, सपोज ये है स्लैब आपका, ये है आपका स्लैब टू वे स्लैब। तो आपको ये स्लैब को मिडल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप में डिवाइड करना है इन बोथ डायरेक्शन। सपोज ये LX है, ये लॉन्गर स्पान है, ये शॉर्टर स्पान है, ठीक है। तो मिडल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप ऐसे आपको डिवाइड करना है बोथ डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका एज स्ट्रिप, सॉरी ये हो गया आपका मिडल स्ट्रिप, ये है आपका मिडल स्ट्रिप एक्स और वाई का। यहाँ पे देखोगे तो ये होगा आपका एज स्ट्रिप, ये भी आपका एज स्ट्रिप और एज स्ट्रिप।
तो आपको आपके स्लैब को मिडल और एज स्ट्रिप बोथ डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो भी रेनफोर्समेंट आपको ये इक्वेशन में से मिलते हैं, ये इक्वेशन में से बाय दिस इक्वेशन, वो रेनफोर्समेंट आपको कहाँ प्रोवाइड करने हैं, मिडल स्ट्रिप में। ये जो रेनफोर्समेंट यहाँ से ए एस टी एक्स और ए एस टी वाई मिलता है, वो आपको प्रोवाइड कहाँ करना है, मिडल में। और एज स्ट्रिप में क्या प्रोवाइड करना है, एज स्ट्रिप में देखो यहाँ पे लिखा है, see reinforcement in age strip parallel to that age shall compile the minimum given in 3 and requirement for torsion। तो मिनिमम गिवन इन सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 में मतलब आपको मिनिमम परसेंटेज स्टील जो स्लैब में है उतने प्रोवाइड करना है। कितने हैं स्लैब में मिनिमम परसेंटेज स्टील, किसी को याद है स्लैब में मिनिमम परसेंटेज स्टील कितना होता है? मैंने आपको बताया था इसमें। माइल 12%। हाँ, अगर माइल्ड स्टील है 0.15। मैं कहाँ लिख रही थी, पॉइंट 12% फॉर माइल्ड स्टील है ना, एंड 0.15% फॉर, सॉरी 0.12% फॉर एच वाई एस डी एंड 0.15% फॉर माइल्ड स्टील। तो ये जो है वो आपको प्रोवाइड करनी है एज स्ट्रिप में, मतलब एज स्ट्रिप में मिनिमम परसेंटेज स्टील आएंगे, राइट? इज इट क्लियर एवरीवन? यस यस मैम। चलो तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं ये डिज़ाइन को। ऑल अदर थिंग्स वी विल सी लेटर ऑन एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट ओनली। यहाँ पे लिखो दिखा है, स्लैब्स आर कंसिडर्ड डिवाइडेड इन ईच डायरेक्शन इनटू मिडल स्ट्रिप एंड एज स्ट्रिप एज शोन इन फिगर 25। तो एज स्ट्रिप का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, देखो 3/4 ऑफ एल वाई होगा, वो मिडल स्ट्रिप की लेंथ है। ऐसे ही 3/4 ऑफ एल एक्स है, एक्स डायरेक्शन में मिडल स्ट्रिप की लेंथ है। तो हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ डिटेलिंग कैसे उसको बताना है। और एज स्ट्रिप की लेंथ क्या है, एल वाई बाई 8, एल एक्स बाई 8, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन बोथ। सो दिस वे यू कैन गेट द डिवीजन इन मिडल स्ट्रिप एंड एज स्ट्रिप इन एक्स एंड वाई बोथ डायरेक्शन। फिर उसके बाद माइल्स रेनफोर्समेंट फाइंड करो, मेन रेनफोर्समेंट मिडल स्ट्रिप में डालो, मिनिमम रेनफोर्समेंट एज स्ट्रिप में डालो, और बस उसका कैलकुलेशन करो, राइट? चलो हम ये स्टार्ट करते हैं। सो राइट डाउन दिस डेटा, लिख दिया है ना डेटा आपने? यस मैम। अब इसको सेव कैसे करते हैं? चलो वेरी फर्स्ट इज माई, देखो जी 6.3 एंड 4.5। अगर ऐसा है तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसको हम एल एक्स, लॉन्गर जो होगा उसको एल वाई। सो एल एक्स इज 4.5, एल एक्स इज इक्वल टू 4.5 मीटर, और एल वाई कितना है 6.3, 6.3 मीटर। तो ये दिया हुआ है हमें, और क्या दिया है, लाइव लोड 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, लाइव लोड 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है हमें, फ्लोर फिनिश 1.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, फ्लोर फिनिश 1.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, और M25 Fe415 जो है।
Now we will going to start with the design part. We'll take first step number 1. Step number 1 क्या होगा? To find thickness of slab. तो कैसे फाइंड किया था हमने वन वे स्लैब का थिकनेस? स्पान बाय डी. स्पान बाय डी रेशियो, राइट. अभी यहाँ पे फॉर टू वे स्लैब स्पान बाय डी रेशियो थोड़ा चेंज होता है, राइट. सो लेट मी शो यू. अगर आप उससे भी करोगे देन इट्स ओके, हम लास्ट में डिफ्लेक्शन चेक करते ही है, बट लेट मी शो यू द एग्जैक्ट क्राइटेरिया फॉर द टू वे स्लैब स्पान बाय डी रेशियो. देखो यहाँ पे नोट्स में देखो पेज नंबर 39 क्लोज 24 का नोट में, फॉर स्लैब स्पानिंग इन टू डायरेक्शन द शॉर्टर ऑफ द टू स्पान शुड बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग स्पान बाय इफेक्टिव रेशियो. मतलब शॉर्टर स्पान मतलब LX को कैलकुलेशन में लेना है. फिर क्या बोला है? फॉर टू वे स्लैब ऑफ शॉर्टर स्पान अप टू 3.5 मीटर with mild steel reinforcement, the span to depth ratio given below may generally use. तो सिंपली सपोर्ट स्लैब है तो 35 लेना है, कंटिन्यूस स्लैब है तो 40 लेना है, बट दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू माइल्ड स्टील रेइंफोर्समेंट. अगर आप HYSD बार यूज करते हो तो जो ऊपर की वैल्यू है उसको 3.8 से मल्टीप्लाई करना है इफ यू आर टेकिंग द HYSD बार. हमें HYSD बार यूज करना है FE415 और हमारा स्लैब कितना है? सिंपली सपोर्ट स्लैब. तो फॉर सिंपली सपोर्ट स्लैब though it is given up to 3.5 meter but we can use this ratio for the two way slab. So simply support slab कितना लेना है हमें? 35, राइट. तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्पान बाय डी is equal to 35 into 0.8. 35 means span means 4500 divided by D is equal to 35 into 0.8. चलो पॉइंट स्मॉल डी फाइंड कर दो. 160.71. 160.71, right. ની અંદર સ્પાન એટલે સ્પાનની અંદર સ્પાનની જે લેન્થ હોય એ લેવાની. शॉर्टर स्पान लेवानी. यस. ઓકે મેમ. यार सेक्शन में केम जતું રહેશે? किसी को पता है इसको कंटिन्यू में रखना हो तो कैसे करते हैं? મેમ સ્પેસ દબાવો. સ્પેસ કરીને પછી બસ મેમ સ્પેસ જવા દો એટલે નીચે જતું રહેશે. okay, so D is 160. Now
capital D, overall thickness of slab, is equal to capital D is equal to small d plus nominal cover. What is nominal cover for slab? 15. 15. So 160 plus 15 plus half of diameter of bar, will assume 10 mm. So find out capital D. One 180. 180. 180 is my overall depth. Chalo, what next? What next? We have this depth. Next is step number 2. To find design load. On slab. So first is dead load. What will be there in dead load? Self weight of slab. What is self weight of slab? Density into, चलो ये सब करवा दिया है, वन वे में जैसे किया है वैसे ही करना है. याद आया कुछ? इंटू 1 मीटर स्ट्रिप के लिए डिजाइन करते हैं. सो 25 इंटू 0.180. हाँ 4.5. 4.5 4.5 kilo. किलो न्यूटन पर मीटर विड्थ ऑफ स्ट्रिप. चलो सेकंड सेल्फ वेट हो गया. फ्लोर फिनिश इज गिवन 1.5 किलो न्यूटन पर meter square is given. This you need to multiply with 1 meter width strip. Though it will give the same answer, but the understanding is more important. So 1.5 kilonewton per meter width strip. Is there any other dead load given? No. No ma'am. तो लाइव लोड कितना दिया है? लाइव लोड 10 kilonewton. 10 Kilonewton per per meter. meter square. Again multiply with 1 meter width of strip. So live load is equal to 10 kilonewton per meter. Chalo, now total load.
on slab is equal to dead load plus slide load. चलो डेड लोड कितना है 4.5 प्लस 1.5 प्लस 10 16 15 16 kilonewton per meter right. Now what we require factor load. This is the unfactor load. Factor load is equal to 16 into partial safety factor. So design load or factor load is equal to 24 24 kilonewton per meter. kilonewton per meter right. So this is my design load. Chalo, what next? Once you have design load, step number 3, maximum to find moment in x and y direction. Chalo, find moment. First along x direction. मोमेंट में इक्वेशन क्या था mx is equal to alpha x w into lx square. कहाँ से मिला हमें ये इक्वेशन annexure d annexure d पेज नंबर 91. Right. Chalo. Now this alpha x value depend on Ly by Lx ratio. So first we will take Ly by Lx ratio. हमने यहाँ पे चेक नहीं किया, देखो यहाँ पे ही चेक कर लेते हैं. What is Ly by Lx? 6.3 by 4.5 कितना था? 1.4. 1.4 is less than 2. So design as two-way slab. Is it clear, everyone? So if it is clearly not mentioned that one way की design करनी है या two way की, depend on this ratio you can do. अगर दोनों span नहीं दिया है तो one way slab ही होगा, एक ही span दिया है तो design as 2 में 1.4. ठीक है, तो यहाँ पे Ly by Lx ratio is 1.4. तो हमें क्या देखना है? टेबल नंबर 27. टेबल नंबर 27 1.4 for 1.4 alpha x is 0.099, alpha y is 0.051. Table 27 alpha x is equal to 0.099 and alpha y is equal to 0.051. चलो फाइंड करो mx
कितना आता है? मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0.099 इंटू डिज़ाइन लोड लेना है हमें 24 इंटू एल एक्स लेना है। एल एक्स क्या है हमारा? 4.5। चलो क्या आता है मोमेंट? 48.114 48.1 114 यूनिट किलो न्यूटन इंटू मीटर पर मीटर विड्थ। This is your first movement in x direction. Where? Along y direction, along y axis. My is equal to alpha y w lx स्क्वायर ही लेना है, यहाँ पे गलती मत करना, ly स्क्वायर मत ले लेना, ठीक है? both equation will have lx only. 0.051 into 24 into 4.5 स्क्वायर। ये यहाँ पे आपने 4.5 स्क्वायर लिया था और आंसर आए थे? yes ma'am yes ma'am ओके yes ma'am ओके 24.786 yes 24.786 किलोमीटर इंटू मीटर पर मीटर विड्थ। So this is my my right. Once you have movement, फिर क्या करोगे आप? मोमेंट मिल गया, कौन सा है? स्टेप नंबर 4। टू फाइंड मेन reinforcement along x and y direction। बोथ डायरेक्शन में आपको फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? x के लिए फाइंड करेंगे along x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में मोमेंट कितने हैं हमारी? 48.114 ठीक है। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कैसे मिलेगा? चलो बताओ, हाउ टू फाइंड AST? कैसे फाइंड किया था हमने? mu by इससे mu अपन BD स्क्वायर। bd 48.114 into 10⁶. What is B for slab? 1 1 मीटर। meter हाँ, और D स्मॉल d क्या है हमारा? 160 स्क्वायर। चलो फाइंड करो mu अपॉन BD स्क्वायर की वैल्यू। थ्री 371 1.87 1.87 3.7 1.87 right. Now from SP16 टेबल नंबर कौन सा लेंगे हम?
M25 के लिए करना है हमें। M20 नहीं, M25 लेना है हमें। तो फ्रॉम टेबल नंबर 3 और 1.879 तो 190 के लिए सेफर साइड पे 190 के लिए लेते हैं। और FE415 कौन सी आती है वैल्यू? 0.583। चेक करो। 1.87 उसका मैंने 1.9 ले लिया। इंटरपोलेशन नहीं करना है, आई एम गोइंग डाउन साइड। क्लियर? Yes. 0.5 Yes, ma'am. 0.583। सो टेबल नंबर कौन सा है ये? 3। टेबल 3 परसेंटेज PT इज इक्वल टू 0.583। यहाँ पर ही आपको मिनिमम का चेक कर लेना है, हाँ ना? इज मोर देन PT मिनिमम। PT मिनिमम क्या है HYSD के लिए? व्हाट इज PT मिनिमम? 0.12. 0.12%। यहाँ पर ही चेक कर लेना है, हाँ? तो दिस इज योर PT। नाउ AST in X direction is equal to PTBD upon 100। चलो 0.583, E is 1000, D is 160 divided by 100। कितना था एरिया ऑफ स्टील? 932.8. 932.8 mm square। तो दिस इज माय एरिया ऑफ स्टील, ठीक है? नाउ Yes. once you have area of steel, now we will find the spacing of bar। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना है? पेज नंबर दिस 230, टेबल नंबर 96, ठीक है? टेबल नंबर 96। चलो ये कौन सा? 932.8 मतलब 9.32। कितना डायमीटर लेना है? चलो बोलो। 10 mm का ले, 10 mm। Yes, तो फॉर ma'am. 10 mm और हमारा है 9.32। तो 9.32 मतलब ये है। इसके लिए स्पेसिंग मुझे मिला 8 सेंटीमीटर। हायर भी जा सकता है, 12 mm का भी ले सकते हैं। 12 mm के लिए 9.32 से ज़्यादा ये है 9.42। तो ये 12 सेंटीमीटर, जो भी लेना हो। चलो बोलो कितना लेना है, कौन सा लेना है? 10 centimeters. 10 सेंटीमीटर। 10 mm. Sorry. सो प्रोवाइड 10 mm डायामीटर एट, कितना है स्पेसिंग? 80 mm. 80 mm सेंटर टू सेंटर। चेक फॉर स्पेसिंग आपको यहाँ पर ही कर देना है, हाँ? कौन सा है स्पेसिंग का चेक? 1/8 into that. 3D एंड 300, ये याद रखो। 3D 300, 4D 450, है ना? तो 3 इंटू 160 480 और ये 300 mm और आपने लिया है 80 mm। सो दिस इज करेक्ट। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, can you do for y direction, along y direction? Yes, ma'am. चलो करो, मुझे डायरेक्ट आंसर दे दो. ईटी की वैल्यू क्या आती है परसेंटेज की? चलो आया. Tell me my upon BD square value. 0.968. 0.968 मीन्स 1 ले लिया मैम approximate. Okay. And ET आ रहा है 0.291 0. and AST in y direction 465.6 mm square. 4, 6, 5. ओके चलो 10 mm के लिए स्पेसिंग फाइंड कर लो. 160 mm center to center. एंड चेक फॉर स्पेसिंग भी यहाँ पर ही कर लेना है. सेम 3D 300. Safe. चलो एनी डाउट टिल दिस? No, ma'am. No, ma'am. Right, so this is your along x and along y direction reinforcement. Now this reinforcement is to be provided in middle strip. मैंने आपको आगे भी बताया था. तो आपको एज स्ट्रिप के लिए reinforcement फाइंड करना है. So now step number 4. यहाँ पे जो लिखा है to find main along x y direction, यहाँ पे लिख दो in middle strip. ये reinforcement आपको middle strip में करना है. Now step number 5. To find reinforcement for
एज स्ट्रिप कितना प्रोवाइड करना है एज स्ट्रिप के लिए, मैंने आपको बताया था मिनिमम रिक्वायरमेंट। सो प्रोवाइड FE415 है, सो प्रोवाइड 0.12% of gross area in age strip। age strip का short form ES, so AST 0.12%, so 0.12 divided by 100 into gross area is E into capital D, ठीक है। so 0.12 divided by 100 is 1000, what is capital D? 180। 180 चलो फाइन करो AST। 216 216। 216 mm स्क्वायर, ठीक है। अभी इसके लिए डायमीटर मेन से कम लेना है, तो प्रोवाइड 8 mm डायमीटर और स्पेसिंग फाइंड कर लो। 2.16 के लिए स्पेसिंग 8 mm का 230 mm center 220, 230 भी चलेगा, 220 yes भी चलेगा। राइट, इन एज स्ट्रिप ऐसा लिखेगा। राइट, एनी डाउट टिल दिस? नो मैम। no ma'am नो मैम। नाउ स्टेप 6, अभी हम डिफ्लेक्शन का चेक करेंगे, उसके बाद डिटेलिंग। चेक फॉर डिफ्लेक्शन। कैसे करना है चेक? बेसिक span by D should more than actual span by D। राइट, अभी यहाँ पे बेसिक स्पान बाई डी में क्या होगा, कौन सी वैल्यू आएगी बेसिक स्पान बाई डी में? 35 इंटू मोडिफिकेशन फैक्टर शुड ग्रेटर देन एक्चुअल स्पान बाई डी। एक्चुअल स्पान मतलब शॉर्टर स्पान, एक्चुअल स्पान ये मतलब 4500, 4500। स्मॉल डी क्या है हमारा? 160। 28.12 ये है आपका 12। 28। एक्चुअल स्पान बाई डी आपको ये आता है। अभी मॉडिफिकेशन फैक्टर फाइंड करना है। चलो IS 456 में फिगर नंबर 4 ओपन करो। और पहले तो हमें चाहिए परसेंटेज स्टील, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम परसेंटेज स्टील है वो लेना है। देखो ये AST है, हाँ कितना है हमारा? 0.583 है ना, 0.583 या 0.5 यहाँ पे आएगा बीच में कहीं पे, 580 और 240 अराउंड 1.21।
Yes, ma'am. 1.2. 1.2 है, 35 इंटू 1.2, ये कहाँ से आएगा? फिगर नंबर 4, 42. तो ये हो गया मेरा 42.35। So this is more, right? So check for deflection is okay. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now you can draw the figure. अभी हम इसका figure draw कर सकते हैं, detailing draw कर सकते हैं। 7 और last is detailing. राइट, तो अभी डिटेलिंग के लिए हमें क्या करना है? वी यूज टू ड्रॉ, पहले प्लान में ही ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और ये है हमारा वैल्यू क्या है? एल वाई एल एक्स का 4.5 एंड 6.3। तो दिस इज माई 6.3, दिस इज माई 4.5 शॉर्टेस्ट वन। पहले हमें क्या करना है? एज स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप को डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे एनेक्शर डी फिर से ओपन करते हैं। ये देखो 3/4 ऑफ एल वाई और 3/4 ऑफ एल एक्स, तो वो मिडल स्ट्रिप मिलेगी आपको। और 1/8 करोगे तो आपको एज स्ट्रिप मिलेगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? 1/8 ऑफ 4.5 डिवाइड बाई 8, 0.5625। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और 6.5/8, 0.8125। तो ये है आपका 0.8125। और आगे क्या बोला था मैंने? 0.56, 5625। नहीं कुछ गलत किया मैंने। ये यहाँ पे है। नीचे आएगा ना मैम? 0.562, और ये तो सेम ही आएगा 0.8125। मैं वापस से नहीं लिख रही हूँ। हाँ, तो देखो आपको ना सही से करना है स्केल से। आप स्केल से करना ठीक से, मैं अभी रैंडम कर रही हूँ। इज इट क्लियर? दिस वे each strip and middle strip will bifurcate.
पता चला? यस मैम। दिस इज मिडल स्ट्रिप और ये सब आपकी एज स्ट्रिप होगी। ठीक है, अभी जो आपने रेनफोर्समेंट फाइंड किए हैं एक्स डायरेक्शन में, वो यहाँ पे करने हैं। देखो यहाँ से ना एलडी डिस्टेंस से जाएगा रेनफोर्समेंट ऐसे, लाइक दिस, और वैसे ही यहाँ पर भी आएगा। और ये जो रेड कलर है वो आपके आगे जो आपने फाइंड किए वो रेनफोर्समेंट 10 mm के 80 और 160। तो ये एक्स डायरेक्शन है, तो ये क्या होगा, ये जो है वो है 10 mm एट 80 और ये है 10 mm एट 160। ठीक है, और जो एज स्ट्रिप के रेनफोर्समेंट है, वो एज स्ट्रिप के रेनफोर्समेंट कितने हैं, 8 mm के 220। वो कहाँ आएंगे, देखो एज स्ट्रिप यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आपका एज स्ट्रिप यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये सब रेनफोर्समेंट कितने हैं आपके, 8 mm डायामीटर एट 220। एंड व्हाट इज थिकनेस, कैपिटल डी क्या है हमारा, 180। तो 180 mm। ठीक, पता चला? यस मैम। यस मैम। So this is about your two-way slab design. Two-way slab simply support, non-restrained slab in there. Corners are not having any provision so that it will not lift it up. चलो clear everyone? यस मैम। यस मैम। चलो कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो, otherwise this simply support two-way slab design is over. अब इसको सेव कैसे करेंगे? Okay. Any doubt, everyone? नो मैम।